चलो कौन शुरू करेगा? चलो तुम शुरू करो। जाओ, तुमको तो पता है तुम्हारा टॉपिक। I'm going to tell you about vegetarian and non-vegetarian. Vegetarian eat vegetable, milk product and fruit. They are do not eat meat and egg. Non-vegetarian eat meat and egg. Do not eat fruit, vegetable and milk product are called non-vegetarian. Thank you. श्लोक मंत्र पूछो। अरे वही वो तो गायत्री मंत्र वापस से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो तुम चलो। Good evening everyone. First of all, I would like to present a Sanskrit shlok. उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तेन्ते तत्र देवम सहायकृत। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य में यह 6 गुण होते हैं, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, उस मनुष्य की सहायता भगवान भी करते हैं। तुम आदत पे बोलो, हैबिट। So basically a habit is said to be something that develops over a period of time, and a person knowingly or unknowingly, subconsciously or consciously does that same particular function. It is said that a habit develops. To develop a habit, you have to constantly do it for about 28 days. A function before that it cannot be said that the function or the thing that you are doing is said to have become a habit. Habits affect our life hugely, as most of us do a lot of the things unknowingly, which have said to evolve over a gradual period of time. Some of the habits are very beneficial for us, whereas some of are harmful for us. Some of the beneficial habits may include the habit of constantly knowing more, of constantly wanting to know more, which is in other words said as also curiosity. Some people are not very. We often say that a person is not very curious as compared to another person. The reason behind that, the curious person will always question and would want to know more about a particular event or a thing, whereas the other one would not be very much interested in it. उसके बाद another good habit can be said like helping others. It also or general social etiquettes. It also develops over a period of time, as nobody is born with a lot of knowledge and all. It's what
the environment or the circumstances feed him, which affects his knowledge, and in turn this knowledge and their and their results or their functions develop it into a habit. Some of the bad habits may include constantly cursing, which is often seen nowadays, a lot. Another habit may include getting mad over some of the most petty issues. This is also another form. It can be also said as a short temper. Although this also, the development of habits affects a lot on your personality, which, and maintaining a high profile or a high personality is definitely very important in today's world. So habits are very essential, and constantly working on your habits to make them as good as to make them better day by day is definitely what is needed in today's world. Thank you. श्लोक सुनाते हैं पहले। पुस्तक कथा तू या विद्या, पढ़ोन गीत च धनम, कार्य कला समुत्पुण्ये न विद्या न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक ही विद्या है तथा दूसरों को देना धन है। जरूरत के समय दोनों बिल्कुल काम नहीं आते। साफ सफाई। I will be speaking about मैं साफ सफाई पर बोल रहा हूँ। साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उससे बीमारियाँ फैलती हैं और फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। अभी इंडिया में भी मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हमें कूड़ा कचरा सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए पार्कों, सड़कों और घूमने फिरने वाली जगहों पे डस्टबिन्स बनाए गए हैं और उन पे लिखा जाता है यूज मी। फिर हमें अपने घर में भी साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने घर में मतलब हर त्योहार पे तो हम साफ सफाई करते हैं, लेकिन हमें हर दिन साफ सफाई करनी चाहिए, उससे कम बीमारियां फैलती हैं। और जैसे कि मोदी जी ने ऐसा भी कहा है कि दूसरों को काम करने से पहले वह काम खुद भी करिए। जैसे कि अगर आपको वो जगह पे बहुत गंदा लगता है वो जगह देखना, तो फिर वहाँ की सफाई आप पहले खुद करिए, तभी वहाँ के लोगों को बोलिए। उसके बाद साफ सफाई के बेनिफिट्स हैं कि पहला, उससे बीमारियां नहीं फैलती हैं। दूसरा, उससे हमारा घर और देश भी साफ रहता है। और थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं, बीमारियां फैलती हैं, हमें उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, फिर उसका काम कर उससे बीमारी हो गया, साफ सफाई नहीं रहने से। हाँ। और फिर उससे कभी कभी मतलब हमने अगर पेड़ के पास कचरा फेंका तो अगर उसमें कोई खतरनाक केमिकल है तो उससे पेड़ भी खराब हो जाते हैं और गिर सकते हैं। उसके बाद अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और मतलब
अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। Firstly, I am going to present a slogan in front of you. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात बड़ों को अभिवादन देने वाले मनुष्य और नित्य वृद्धों की सहायता करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या और बल और यश बढ़ता है। ट्रेवल पे बोलो, टूर्स एंड ट्रैवल। क्या? टूर्स एंड ट्रैवल। टूर्स एंड ट्रैवल। यात्रा, घूमना फिरना वगैरह का इस टाइप का। शिक्षा। हम बताते हैं ट्रैवलिंग पे। ट्रैवलिंग मीन्स मूविंग from one place to another by the use of transport. Traveling is important to look out for some monuments or इस पे नहीं आएगा, शिक्षा पे बोलना है। ठीक है। Education is very necessary for life. In India, the people are very illiterate, and due to this, India is not much civilized than some other countries. Much more civilized than any other country. एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है वो भले मतलब इंडिया में लिटरेसी रेट कम है और ये सही। और एजुकेशन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे ही नई इन्वेंशंस होती हैं, और विदाउट एजुकेशन इट इज़ हार्ड टू सर्वाइव। और अभी की सरकार के द्वारा बहुत से सरकारी स्कूल भी खोले गए हैं ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए। और एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, सब तरीका का गीता। क्या बोला है इसके बारे में? नॉलेज से ही हमारा माइंड डेवलप होता है, और
और और किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में भी आपको होनी चाहिए एजुकेशन। और हो गया। थैंक यू। सबसे पहले श्लोक प्रस्तुत करेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराण में व्यास के 2 वचन हैं। पहला परोपकार ही पुण्य है, दूसरा दूसरों को दुख देना पाप है। अब तुम भारतीय व्यंजन भारतीय व्यंजन इंडियन फूड, अच्छा ठीक है, वो पता है पकवान वगैरह जो भी है, सब जितना जानते हो बोलो। क्या क्या होता है, उसका क्या नुकसान है, कैसा लगता है, ये सब ठीक है। कैसे बनता है, ये भी बोल सकते हो। अभी क्या चलो। भारत इतिहास में भारत इसमें नहीं, इतिहास में भारत नहीं। अरे तुम चुप रहो ना, तुमको कोई बोला है बोलने। हाँ, स्टार्ट कैसे करें? ये व्यंजन दाल भात चोखा महामशहूर है। स्टार्ट करने दे रहे हैं ना। कोई जरूरी नहीं स्टार्ट करने का, तुम बीच से शुरू करो। स्टार्ट बाद में कर लेना। भारतीय व्यंजन ठीक है। भारत में अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का इडली सांभर या डोसा सांभर, जो कि विश्व प्रसिद्ध है इस समय। और फिर पंजाब की लस्सी, हैदराबाद की बिरयानी। खाली नाम जोड़ा हुआ है। बोलो कम से कम ये तो बोलो, खाने में बहुत अच्छा लगता है, पीने में अच्छा लगता है। पंजाब की लस्सी, फिर खूब लोग पसंद। बिहार का लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो एकदम कमाल है। गुजराती ढोकला। गुजराती ढोकला कुछ ना होता है, बंद हो। हाँ, ये सब व्यंजन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दाल भात खिचड़ी होता है, दाल भात होता है। क्या क्या हम लोग तो रोज अलग अलग खाते हैं। कश्मीर का ये बात तक होता है, नॉन रोटी बोलने तो दीजिए। कश्मीर का क्या था? चावल नहीं, कश्मीर का वो था राजमा। तुम लोग बोलोगे गड़बड़ा दोगे। नहीं, कोई और टॉपिक दे दीजिए पापा। मैं तुम इस पे बोलो जितना बोल सकते हो। नहीं, इसके अलावा कुछ और? कुछ और पापा इसमें सोच नहीं पा गए कहाँ से शुरू करें, फिर कहाँ दूसरे जाए। पर भी नहीं सोच पाओ। पापा बोलो खेल पर।
तुम अहंकार पे बोलो। अहंकार, इतिहास गवाह है कि जब जब जिसने भी अहंकार किया तब उसका सर्वनाश हुआ। उदाहरण के लिए रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी नाश की सबसे बड़ी वजह उसका अहंकार था। और फिर दूसरा है ये, दूसरा उदाहरण हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति के बाद उसको भी अहंकार हुआ कि वह अजय है और वह अपने वर का दुरुपयोग करता चला गया और अपना विशाल साम्राज्य कायम किया। लेकिन उसकी मृत्यु उसी के पुत्र की वजह से हुई, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अहंकार और घमंड एक ही होता है क्या? क्या? अहंकार और घमंड। अहंकार और घमंड एक ही होता है, लेकिन स्वाभिमान उससे थोड़ा उसी टाइप का चीज है, लेकिन स्वाभिमान और गौरव अलग चीज है उसी टाइप का। स्वाभिमान और गौरव जो है उसमें अहंकार नहीं आता। वह जो हम करते हैं उसका वास्तविक अनुभव हमारे ऊपर होना चाहिए। हम दान दिए 10 रुपया तो वह हमको गौरव हुआ, लेकिन हम दान देते ही हैं, जैसे तुम लोगों को सिखाया जाता है यह तो दाल खाता ही नहीं है, यह अहंकार है। जे वाला दूध नहीं ये पीता वाला बच्चा, ये तो जो है कच्चा दूध पीता जे ही वाला नहीं। मैगी भी नहीं खाता हाँ, वो वाला मैगी। यह अहंकार है। लेकिन हमको गौरव है कि हम मैगी खाते हैं और हम मैगी ही खाते हैं। अगर बाल हम इसका काट देंगे दुखी हो जाएगा इसका। पहले श्लोक प्रस्तुत करते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचार्यवान् नरः श्रद्धानु अनसूय शतं वर्षाणि जीवति। अर्थात सारे अहंकार से हीन होने पर भी सारे अहंकार बोल रहे हैं लक्षण, हाँ, सारे लक्षणों से हीन होने पर भी यदि कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाला है, तो वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तुम जो यूज करते हैं गैजेट्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, तो मोबाइल, कंप्यूटर, टैब, लैपटॉप, इस पे बोलना। टेलीविजन। Now I will tell you about some gadgets that we use very frequently, मतलब every day. Yes, yes. That are phone. every day या every time? क्या? हाँ, every time we can say also. Yes, yes. बिल्कुल सही। That are mobile phones, AC, television, laptop, PC, etc., desktop. In some ways they are very useful to us, and also they are very harmful. Useful ways of that are for mobile, मतलब मोबाइल से हम लोग बहुत अच्छे से मतलब वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हाँ, हैं। बात कर सकते हैं और मतलब दूर वाले लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। और क्लास नहीं कर रहे। हाँ, nowadays we are having online classes through some gadgets like mobile, laptop and etc.
Harmful effects of gadgets are electronic devices are it is harmful for our health and environment. और चश्मा लग जाता है। ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। आईज, ब्रेन, वर्टेब्रे एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पे भी बहुत वो होता है, प्रॉब्लम होती है। और फोन पे खाली बातें और गेम्स भी खेलते हैं फोन पे। And we can gather information from electronic devices. Thank you. मैं श्लोक से शुरू करने जा रही हूँ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य किं करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। इसका अर्थ है जिस इंसान के पास खुद का विवेक नहीं होता उसके लिए शास्त्र कोई काम का नहीं है। और जैसे ही हाँ बोलो। जिस इंसान के पास खुद का विवेक नहीं होता उसके लिए शास्त्र कोई काम का नहीं है। उसी तरह जैसे दृष्टिहीन के लिए दर्पण का कोई काम नहीं होता। और जिस आदमी का नाम ही विवेक हो उसका तो क्या होगा? तुम जो है ट्रैक्टर पे बोलो। ट्रैक्टर इज a transport vehicle. It is used in agriculture for plowing and cultivation of plants in the Field. Cultivation of field. It also helps in the transportation of goods. Yes. It has 4 tires. Yes. One steering. It has 4 tires and 2 बड़े वाले 2 छोटे। Harvesting? इरिगेशन जाता है। जो सोचोगी वही होता है। It is usually found in the village areas because there are much more need of agricultural vehicles. वो देख के एक्साइट हो रहा है। चलो ठीक है। सबसे पहले मैं श्लोक बोलूंगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अर्थात हे देवी मुझे सौभाग्य और आरोग्य दे, रूप दे, जय दे, यश दे और सारे द्वेष का नाश करे। तो
सेवा पर बोला। हटाओ, देख के एक्साइट हो रहा है। ये हाथ दोनों पकड़ के रखो। बोलो बोलो, उसको तुम छोड़ ना दो, वो अपना काम करता है। सेवा। सेवा पौराणिक काल से जो भी जितने भी छोटे छोटे तुम तो बच्चे ज्यादा से अपने नीचे माता रहता पिता है। की सेवा करते हैं। जैसे कि सबसे इसका उत्तम एग्जाम्पल है राम जी। नहीं बैठेगा ही नहीं। राम जी जो है दो इधर दो। कुछ सामान ला के लाऊंगा। राम हर एक बच्चे का धर्म होता है कि वो अपने से बड़ों की सेवा करे। इधर पे जाता है, दूसरा बोलता है। तुम बोलते रहो ना। हर एक बच्चे का कर्तव्य होता है कि वो अपने से बड़े लोगों की सेवा करे। राम जी जो है वो भी अपने माता पिता की बहुत सेवा करे थे। जब उन्हें वनवास जाना पड़ा तो दशरथ जी जो है वो बहुत, जब राम जी को गुरुकुल भेजा गया तो वो अपनी गुरु जी की भी सेवा करते थे। वो रात भर जागकर अपने गुरु के पैर हाथ दबाते थे और जब तक गुरु ना सो जाते थे तब तक वे ना सोते थे। फिर वो अपने माता पिता की भी बहुत सेवा किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेवा करने से पुण्य भी मिलता है। और अगर कोई बूढ़े लोगों की सेवा करे या फिर किसी की जो भी मदद बूढ़े लोगों की सेवा करे तो उन्हें आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे अगर किसी काम में रुकावट भी हो हो सकता है कि वो आशीर्वाद की वजह से वो पूर्ण हो जाए। गाय की भी सेवा करते हैं कुछ लोग, क्योंकि गाय जो होती है उनको माता का सम्मान दिया गया है। क्या पता मच्छर कोरोना के मच्छर कोरोना